Hello, nice because the diverse group, lot of heterogeneity is there. We have some professors over here, then we have students, then we have entrepreneurs, startups. So it's very good thing, and most probably, I guess there should have been some interactive session or some maybe sort of small lectures or presentations from you people as well. तो आप देख ले रहा हूँ जरीन सायरा बानो. Okay, you just talk to your this coordinator because ये बहुत important होता है ना. We should give maybe हाँ आधा दिन आप दे दो इनको, give them 10 minutes presentation, so they will also give the presentation and feedback. Not feedback actually related to the training program, so वो उनको activity रहेगा, so that will be better. Anyway, मेरा नाम तो आपने सुना ही, myself Professor Said Zamir Hussain here. So we'll be discussing something about very novel mushroom that we called as Gucci mushroom. ठीक है, तो क्योंकि all of you know that it's a very high value crop and its cost is very very high. And by the way, I'll just introduce one of my PhD students who's sitting here, Dr. Shazia. She is not doctor still, she is Miss Shazia, but she is pursuing under my guidance and she is working right on the Gucci mushroom only. So I'm just presenting her little part of work over here. So if we talk of Gucci mushroom, तो let us not go into this classical things जो हम क्लास बच्चों को पढ़ाते हैं, kingdom, division. It's not actually relevant to you people much. So if we talk of the, अगर हम बात करें इसकी mushroom as an industry की, that we know that ये mushroom industry is also growing at a very good scale. And in fact, out of all the industries, right now the food processing industry is gaining the very good momentum. And the industry is growing at a faster annual growth rate than that of the agriculture sector itself. So that's called as sunrise industry. So likewise, mushroom industry, although small crops, the food processing ki baat kare, is a big industry covering all the crops, processing processed products of fruits, vegetables, cereals, what else. So, but mushroom is a very specific crop. So, but this industry is also growing in a good rate. We are seeing that it is USD 63 billion global market is for the mushroom industry. Fine. So, if we talk of this Gucci mushroom की बात करें, it's about जो हमारी इसमें production है, it's about 1.5 million tons, and it is being said that India, Pakistan, they roughly produce 50 tons of dry morels in the different forms. So Gucci है, then Gucci are different types. Fine. So if we talk of the production within the country, then Himachal Pradesh is leading one, and then it's followed by the Jammu and Kashmir. So we because इसकी जो production है, although it is not that validated, because आपको पता है tribal लोग how they are collecting it. They go to the forests and they collect these morel mushrooms. So इनकी production somehow, one of these PhD student has somehow collected. Roughly we produce about 21 quintals of it. Fine. So, but as of now, if you see, these are just various species of kya Gucci mushroom. We know just one name Gucci mushroom, but there are different species of Gucci mushrooms. Fine. So now question is कि few things are there which actually caught our attention also. कि हमने क्यों एक full fledged PhD student को इस काम में लगा दिया. Just I will make you understand कि what was the reason behind we took this as a full fledged PhD research topic. Because it somehow stuck to my mind that अगर हम गुच्ची मशरूम की बात करें तो I have seen it that although firstly जो ट्राइबल लोग हैं they collect it, इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाई है. इनफैक्ट जिस दिन इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन सक्सेसफुल हो जाएगी दैट इज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पा रहा. पीपल आर वर्किंग, ऑल्दो मेरा पोस्ट हार्वेस्ट है, वी आर वर्किंग ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट एस्पेक्ट. बिकॉज जैसे कि हमारे मेडिकल में होते हैं, सम आर ऑर्थोपेडिशियन, सम आर ENT, सम आर ऑर्थोपेडिशियन, सम आर पीडियाट्रिक्स, isn't it? So likewise in agriculture also we have, mine is the post harvest, means I doesn't deal with the pre-production aspect. Ours is processing, then mostly my specialization working on the machine development, other things. So anyway, going to it is जो हमें स्ट्राइक हुआ दिमाग को वो ये हुआ कि अभी तक जैसे कि हम देखते हैं ट्राइबल पीपल दे हार्वेस्ट इट, खुद ही हार्वेस्ट करते हैं, जंगल में चले जाते हैं बेचारे, and then they collect it. And important thing is that it cannot be sold in the fresh form, because वैसे भी देखिए moisture content of mushrooms is very high. यहाँ पर हमारे मशरूम के PhD scholars भी बैठे हैं. Mushroom has a high moisture content and shelf life is very very low. तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो what they do, tribal people, they dry it. Fine.
तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी. तो दैट इज एक्चुअली व्हाट आई कॉट टू माय अटेंशन. एक बार somehow it stuck to my mind. Then I discussed with my scholar and we took this as a research topic. हमारे दिमाग को ये स्ट्राइक हुआ कि वी हैव ऑब्जर्व दैट वी हैव सीन फर्स्ट, बिकॉज जब भी काम करना होता है कोई भी रिसर्च टॉपिक हो, फर्स्ट यू मस्ट सी द स्टेट ऑफ आर्ट प्रैक्टिस, हाउ पीपल आर डूइंग इट प्रेजेंटली. जब आप आंखों से देखेंगे ना चीज, तो आपके जो गैप्स है वो खुद ब खुद बाहर निकलती है. गैप्स वोंट कम बाय स्टडीइंग द टेक्स्ट बुक्स. अगर मैं मशरूम पे हजारों बुक्स भी पढ़ूं ना, दैट वोंट गिव मी द रिसर्च गैप्स. Research gap will give me only once I see the how people are doing it, what is the existing practice, I can identify the lacuna and I can come up with the solution. ठीक. So in that context I saw how people are actually drying it. कशर पोचे दाम बिर्च ना सब जो हमारे वो रहते हैं घरों में, ट्राइबल एरिया में ज्यादा रहते हैं, तो दे हैंग दीज मशरूम्स देयर. ठीक है, जहाँ वो फायर पॉट का सब उसके ऊपर वो लटका के रखते हैं. दैट इज उनके पास थोड़ी कैबिनेट ड्रायर है या कुछ मैकेनिज्म है. So dry it in that way. तो then somehow I thought it, नहीं ये जो प्रैक्टिस है बहुत अगली प्रैक्टिस है. अब इसके दो नुकसान है. पहली बात ये है कि जब हम आपको दिखाऊंगा अभी कंपोजिशन में, जब हम इसको मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करते हैं, ड्राई करते हैं, एंड एज ऑफ नाउ इट स्टक दैट टाइम टू माई माइंड कि फॉर एग्जाम्पल दे ड्राई टॉप पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट, से इसका 80% मॉइस्चर कंटेंट है, दे ब्रिंग डाउन इट टू 4 या 6%. ठीक है. जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है 1 kg को वो ड्राई करके मे बी दे मे गेट 100 ग्राम. लेकिन क्या पता है इसका सेफ मॉइस्चर कंटेंट 4 to 6 ना हो, इट सेफ मॉइस्चर कंटेंट इज 10%. तो दैट मीन्स जहां वो बेचारे 100 ग्राम निकलते हैं उनके 400 ग्राम निकलेंगे. दैट विल गिव अ वेरी बूस्ट टू देम. उनकी इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी, बिकॉज उनको नुकसान हो रहा है, मॉनिटरी लॉस. 1 kg से वो बेचारे 100 ग्राम ही बना पाते हैं. हो सकता है कि वी नीड टू डिटरमाइन द सेफ मॉइस्चर लेवल. सेफ मॉइस्चर लेवल से ये करेंगे, अगर समझो 4 के बदले इट्स 6 या इट्स 8, इट्स 10, इसका मतलब है जहां वो 100 ग्राम फाइनली रिकवर करते हैं, दे विल बी एबल टू रिकवर 400 ग्राम, 500 ग्राम, डिपेंडिंग. सो दैट वाज एक्चुअली व्हाट स्टक टू अवर माइंड. एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो एक एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट है द वे दे आर ड्राइंग, दैट हिट इज द क्वालिटी. पहली चीज हम देखते हैं वो मशरूम बड़े काले से दिखते हैं. ठीक है, उनका कल, बिकॉज इफ यू ड्राई इट इन दैट कंडीशन, बिकॉज ड्राइंग इज अ बिग साइंस. हमारे फूड टेक्नोलॉजी में ड्राइंग इज कंसिडर्ड एज एक बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसलिए इफ यू डू इट इन अ नॉन कन्वेंशनल वे, अगर आप ऐसे करेंगे इसको अंडर द ट्रेडिशनल कंडीशंस, सो श्योरली इट्स क्वालिटी ऑफ दिस गुच्छी मशरूम गेट्स कंप्रोमाइज्ड. ठीक है. सो वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू नॉवल ड्राइंग टेक्निक्स, वो मैं आपको भी बोलूंगा. वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग द फ्रीज ड्राइंग, वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग द वैक्यूम ड्राइंग, we thought of exploring the cabinet drawing. So let us come up with and compare it with the existing traditional drawing practice. So that was actually, I'm just giving the background कि हम इस गुच्छी मशरूम की क्वालिटी कैसे रिटेन. उससे पहले आई विल जस्ट टेल यू, यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड, दिस वाज ऑलवेज इन माय माइंड. ये भी एक गैप है विच वाज ऑलवेज इन माय माइंड. मैं हमेशा अपनी शाजिया के साथ बात भी करता भी था. आई वाज टेलिंग कि अभी तक अगर हम देखेंगे मशरूम तो मशरूम ही है, बट वाई गुच्छी मशरूम इज सो एक्सपेंसिव. अभी न्यूट्रिशनल डॉक्यूमेंटेशन फुल फ्लेज इस पे नहीं हो गई. इट्स नॉट हो गया जी मशरूम जी गुच्छी मशरूम है जी, बड़ा महंगा है जी. इफ आई विल से कंज्यूमर जो लेता है 30,000 रुपए में लेता है कि जो उसको पूछिए क्यों खाते हो, ही इवन डोंट नो, बहुत अच्छा है जी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा. So anyway, we thought of why not to document it, why not to compare its nutritional composition with different mushrooms, and let us see what exactly it contains that makes it good. So this is अभी तक बेसिक सा हल्का फुल्का हम इसमें, और भी वी आर एक्चुअली, वह स्टडी अभी हमारी चल रही है, वी आर एक्चुअली जो इसमें हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम हो रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, इट हैज सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स जो क्लेम किए जाते हैं गुच्छी मशरूम को, बट वी आर टेस्टिंग इट. We are testing whether it has those properties or anti-cancerous property. We are in a process of that. वो भी हम यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं because the results are in the process. So, but proximate composition means मोटी-मोटी बात करें हम. अगर हम मोटी-मोटी बात करें तो you can see protein, a good difference between the other mushrooms and protein content of morel mushroom. हमारे गुच्छी मशरूम में it's about 35.8 ग्राम, while as other mushroom में 14.2 से 28.6 रेंज में. इसका प्रोटीन कंटेंट इज कंपैरेटिवली हायर देन अदर्स. गोइंग टू द फाइबर, फाइबर भी आप देखेंगे इट्स 28.8, व्हाइल एज अदर मशरूम्स में मैक्सिमम 12.4 तक है. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2.9 टू 12.4. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आयरन. अब देखिए यहां पर मेरे राइट साइड में मैंने क्या किया है,
राइट साइड में आई हैव पुट द RDA. यू मस्ट बी नोइंग RDA. RDA इज रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस. एक आदमी को रिकमेंड क्या किया जाता है उसको पर डे कितना आयरन खाना चाहिए, कितना मैग्नीशियम खाना चाहिए, कितना कैल्शियम खाना चाहिए, विच यूर बॉडी एक्चुअली रिक्वायर्स. दैट्स कॉल्ड एज RDA, रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस. सो इसमें हमने क्या किया, वी हैव जस्ट गिवन फॉर एग्जांपल आयरन जो है, आयरन कंटेंट जो गुच्छी मशरूम है, इट इज 59.4 mg पर 100 ग्राम. शायद है ना, इट्स पर 100 ग्राम. ओके फाइन. तो इफ यू टॉक ऑफ 59.4 mg, दैट मीन्स इट इज 3 टाइम्स. अगर आप पर 100 ग्राम करेंगे कंज्यूम, पर 100 ग्राम तो कंज्यूम नहीं करेंगे, मैं बोलता हूं पर 100 हाफ, 100 का आधा होता है 50 का आधा होता है 25. तो दैट मीन्स इफ यू जस्ट टेक 25 grams of गुच्छी मशरूम्स, योर आयरन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड. लाइकवाइज आप देखिए जिंक में भी कितना है, ठीक है. एंड मोर राइबोफ्लाविन जो है विटामिन हमारे, वो तो पूरा 100% ये 100 ग्राम के हिसाब से है. एंड विटामिन डी, ये मैं यहां पर बोलना चाहता हूं. दैट्स आजकल यू आर सीइंग राइट नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर रीजन की बात करूं, जम्मू की नहीं करेंगे. कश्मीर में वी हैव अ इश्यू, जो भी टेस्टिंग करता है विटामिन डी की डिफिशिएंट, आई हैव ऑब्जर्व इट. मेरे नजर में इवन आई डिड इट, मैं अपनी बात ही करूं तो जिसको भी मैंने पूछा तो दे टोल्ड नो वी हैव द विटामिन डी डेफिशिएंसी. सो इसको देखिए, आप देखिए इट्स अबाउट 48 टाइम्स जो इसमें विटामिन D2 कंटेंट है, इट इज 48 times. Then what is the RDA recommendation for D2 in 100 gram of mushroom? So anyway, these are some of the highlights how it is nutritionally superior to other mushrooms. Fine. So ये जो other properties है which I was discussing, इसको हम validate कर रहे हैं. We are working on it. हम इसको validate कर रहे हैं ये वाकई सच है कि नहीं है. Because nowadays it has become a trend to say हर एक चीज का ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वो, पता नहीं किसी का भी क्लेम करते हैं. तो बट साइंटिफिकली वैलिडेट करना, इफ अ साइंटिस्ट सेज इट, he cannot say it's code in a book, he has to validate it. That's what research is actually. So we are just validating it, which claims are authenticated or not. So although it's claimed that इसमें anti inflammatory activity भी है, it's anti cancerous, it is the gut health protective effect है इसका, antioxidant है, then immune protective effect is as well. So going to the post harvest challenge, जो मैं भी आपको बात कर रहा था, दिस इज एक्चुअली वी कॉल्ड एज टेक्निकली एज हर ड्राइंग. इसका मतलब है जो मैं अभी चोले की बात कर रहा था, चूल्हे पे लटका के रखते हैं. दिस इज द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग द गुच्छी मशरूम. एंड फ्यू ऑफ द पीपल, एज माय स्कॉलर सेड लाइक दैट ओनली, फ्यू ऑफ आवर, हाँ जी आ जाए, यू आर पार्टिसिपेंट्स हियर. ओके, एनीवे आप थोड़ा यहां से स्टार्ट करें. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गुच्छी मशरूम्स. ओके, तो नाउ वन मोर प्रैक्टिस इज देयर. जस्ट मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस आपको यहां से स्टार्ट करूंगा, ज्यादा पीछे तो नहीं जा सकते हैं. यू कंटिन्यू फ्रॉम द ड्राइंग, लेटर ऑन यू कैन डिस्कस. तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग के ड्राइंग एग्जिस्टिंग मेथड्स क्या है गुच्छी मशरूम के. वन इज दैट जो हर ड्राइंग होती है, दैट मीन्स जो कश्मीरी चूल्हा वगैरह होता है, पीपल हैंग इट देयर एंड वाइल दे कुक, उनका कुकिंग सामान भी, रोटी शोटी दाल वाल पकती है तो साथ साथ में गुच्छी मशरूम भी ड्राई करते हैं. एंड सेकंड पॉइंट इज सन ड्राइंग. वेरी फ्यू नॉट ऑल, वेरी फ्यू, कुछ ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो इसको सन ड्राइंग करते हैं. फाइन. सो बट इफ यू विल सी, अगर हम दोनों को थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करें इधर, वी हैव जस्ट डॉक्यूमेंटेड इट दैट जो इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें, इट्स अबाउट 87% जो गुच्छी मशरूम में होता है. एंड फाइनल मॉइस्चर कंटेंट जब ये ऐसे हर ड्राइंग करते हैं तो इट गोज अप टू 5%, एंड सन ड्राइंग में इट गोज अबाउट 6%. दैट मीन्स 5 to 6% में एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है जो ड्राई करते हैं गुच्छी मशरूम को. दे जो मैं भी आपको बात कर रहा था, जो हमारा टारगेट है, मैं आपको बोलूंगा हाउ वी हैव अचीव्ड दैट. सो वी हैव सीन दैट जो हमने पहले वहां से गुच्छी मशरूम लाया लोगों से, वी हैव फर्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया, हमने उसका मॉइस्चर कंटेंट देख लिया. जो लोग ट्रेडिशनली ड्राई करते हैं, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दैट, एंड वी हैव फाउंड इट 5 to 6% रेंज. फाइन. देन ड्राइंग टाइम इसमें लिखा है, उसमें 3 से 4 दिन है, 4 से 5 है वगैरह, इनिशियल वेट जो भी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अब लास्ट का पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फ्रेश टू ड्राइड कन्वर्शन रेशियो. दैट मीन्स अगर आपका 7.3 kg है, 7.3, आपको उससे 1 kg मशरूम निकलता है ट्राइबल को, यूजिंग द एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ ड्राइंग. ठीक है.
दैट मीन्स 7.5 किलो से 1 किलो निकलता है। ये बहुत बड़ा लॉस है ना एक ट्राइबल बेचारे के लिए। सो दैट इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व। एंड फ्यू मोर चैलेंजेस आर देयर जो जिनको भी हम साथ साथ में एड्रेस कर रहे हैं, नॉट ओनली ड्राइंग। वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट जो भी गुच्छी मशरूम होते हैं दे आर सोल्ड अनपैक्ड, है ना, ऐसे देखते हैं आप वो मतलब बेचते रहते हैं, उसका कोई पैकेजिंग सिस्टम नहीं है। सो वी थॉट ऑफ दैट आल्सो, मतलब वी मस्ट ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग इंटरवेंशन, बिकॉज जब आप लूज मशरूम भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली देयर आर वेरी गुड चांस ऑफ कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। वैसे भी जब हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इसके साथ हैंडल करते हैं वो बेचारे उतने हाइजीनिक नहीं होते हैं, बिकॉज उनकी सर्वाइवल कंडीशन ही डिफिकल्ट होती है, सो दे कैन नॉट मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ हाइजीन। तो इसलिए इसमें जब इसमें बियर हैंड से वो टैकल करते हैं, लेते हैं, तो देयर आर वेरी हाई चांस ऑफ कंटामिनेशन। तो इसका मतलब है ये एक एस्पेक्ट, जो भी ड्राइंग का आपका मॉइस्चर या क्वालिटी, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट साथ साथ में ये भी है कि अगर इसका मिस हैंडलिंग हो जाएगा, बिकॉज इट इज लूजली पैक्ड, इट इज नॉट अनपैक्ड, सो उससे क्या होगा, इसके कंटामिनेशन की चांसेस ज्यादा है। कंटामिनेशन के चांसेस तो शेल्फ लाइफ तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा घट जाएगी, शेल्फ लाइफ विल बी वेरी लो। So then these are some of the things because जो usually quality deterioration करते हैं इसमें। And one more important thing is once it's जब ये dry करने, because it's a hygroscopic nature रहता है इसका, once you dry it and you keep it in open condition, तो automatically it will absorb the moisture, है ना। drying क्या होता है? drying is actually the game of moisture transfer between atmosphere and the commodity। ये तो वही है ना, सिंपल सी। लद्दाख में आप देखिए, लद्दाख में क्विक जल्दी चीजें सूखती है। रीजन क्या है? बिकॉज वाटर वेपर प्रेशर प्रेजेंट इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस, ड्राई हियर। तो पूरा जब आप कपड़ा सुखाते हो 2 मिनट में वो सूख जाता है, बिकॉज वो पूरा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं है। रेनी सीजन में आप देखते हैं कपड़ा सूखता नहीं है। रीजन क्या है? बिकॉज जब रेनी सीजन होता है तो एटमॉस्फेयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर वेपर, तो इसलिए वहां से तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो इसलिए आई एम टेलिंग इट्स अ गेम ऑफ दैट, ड्राइंग इज गेम ऑफ इंटरचेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। And this game of interchange of moisture content occurs till EMC is reached, that we called as equilibrium moisture content। जब दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम, सला समझौता हो गया, जी अब ना आप मुझे मॉइस्चर देंगे ना मैं आपको अपना छोड़ूंगा, तो इट बिकम्स द EMC लेवल। तो वो EMC लेवल नेचुरली ह्यूमिडिटी में रहेगी तो ज्यादा चांस रहेगा। तो एनीवे, तो ये भी एक कंसर्न है कि इसमें तुम्हारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो now going to some small things what we are actually doing। तो हम ड्राइंग में क्या करते हैं, हमारा ड्राइंग में एक कंसेप्ट रहता है। आप दोनों में बोर हो गए, यू कैन लीव, फाइन, ओके। एक्चुअली ही इज माय सन एंड शी इज माय वाइफ। एक्चुअली वो उनको मेला दिखाने लाया था, तो ये तो खैर मूड में नहीं थी आने की, तो लेकिन मेरे बेटे ने माना नहीं, कहा नहीं आपका लेक्चर सुनना है, तो अब इसको जबरदस्ती आना पड़ा। तो एनीवे, so now in drawing what we are doing, हम ड्राइंग से पहले we are giving the pre drawing treatments, fine। हम देते हैं प्री ड्राइंग ट्रीटमेंट्स। प्री ड्राइंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं? प्री ड्राइंग ट्रीटमेंट एक्चुअली जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हो कश्मीर में हम ये गोगजा है, अल्लाह है, तो वी आर सीइंग, अगर घर में करते हैं तो वो काफी काले पड़ जाते हैं, isn't it? गरस मतलब रहने का। लेकिन अगर आप वही साइंटिफिकली करेंगे तो वो पूरे कलर मेंटेन रहेगा, काली नहीं। दिस इज नॉट एक्चुअली बिकॉज ऑफ ड्राइंग, दैट इज प्री ट्रीटमेंट एप्लीकेशन, यू गॉट इट। तो इसलिए ड्राइंग से पहले प्री ट्रीटमेंट एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वी हैव बीन वेरी केयरफुल फॉर व्हाट वन पॉइंट। आप देखो, अदरवाइज जो हमने इसमें प्री ट्रीटमेंट यूज किया है ना, ये यूजुअली किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप में नहीं की जाती। दे एड केएमएस, क्या दे एड केएमएस? केएमएस इज अ प्रिजर्वेटिव, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। दे एड ऑल, अगर आपको अलहचन वांगन जो ना कार्बन कलर रिटेन, मैक्सिमम टाइम्स ऑल ऑफ पीपल विल ट्राई केएमएस इन अ सेफ लिमिट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं बोलूंगा इसमें क्यों नहीं किया, बिकॉज जैसे केएमएस डिप करेंगे, तो जब केएमएस डिप करते हैं तो वो प्रिजर्वेटिव है, तो वो उसको काला नहीं होने देता। बट वी हैव बीन कॉन्शियस विद वन थिंग, हमने कहा जो ये गुच्छी मशरूम है ये बेचारा तो नेचुरली ऑर्गेनिक है, ठीक है, ये तो नेचुरली ऑर्गेनिक है, हम इसको केएमएस वेएमएस डाल के क्यों इनऑर्गेनिक बनाए? सो वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, वी विल नॉट एड एनी प्रिजर्वेटिव, हम इसको ऑर्गेनिक ही चलने दें। अदरवाइज अगर हम केएमएस में जाओ तो शायद रिजल्ट और अच्छा आ जाता है, लेकिन वी डिडंट ट्राई दैट। बिकॉज अगर किसी को आप ऑर्गेनिक क्लेम करेंगे तो ऑर्गेनिक क्लेम का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, कहीं भी इसका केमिकल इंटरवेंशन नहीं आना चाहिए। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी ट्राइड वन कंट्रोल हम टेक्निकली बोलते हैं, जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। देन वी एड सम विनेगर, इट्स एप्पल जूस, एप्पल विनेगर है ये। देन लेमन जूस प्योर,
कर्ड एंड ब्लांचिंग. ब्लांचिंग मीन्स हॉट वाटर में डिप किया, उसको बोलते हैं ब्लांचिंग. सो नो केमिकल प्रिजर्वेटिव और केमिकल थिंग वाज एडेड एज अ प्री ट्रीटमेंट. एंड देन वी एक्सप्लोर द ड्राइंग मेथड्स, दैट इज शेड ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, कैबिनेट ड्राइंग एंड फ्रीज ड्राइंग. ठीक है, ये 4 मेथड ऑफ ड्राइंग है. नहीं वही मैं बोल, ये तो बेसिकली वो है टेस्टिंग. मैं आपको ये दिखा रहा चाहता बोलता हूं कि समझो ये 5 है, ये 4 है. 5 into 4 कितनी हुई? 20. आई विल टेल यू हाउ वी आर, जस्ट बिकॉज आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा समझो ब्लांचिंग है. वी डिड ब्लांचिंग प्लस फ्रीजिंग, ब्लांचिंग प्लस कैबिनेट, ब्लांचिंग प्लस वैक्यूम, ब्लांचिंग प्लस शेड. Likewise, we did curd plus freezing, curd plus this, curd. Likewise, we made 20 combinations, 5 into 4. 20 combinations को हमने ट्राई किया and we tried to found कि कौन सी लेवल हमारी अच्छी है. एंड इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज जो फ्रीज ड्राइंग है इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस जहां पर आप ये देखते हो कि जैसे कि आप कोई चीज ड्राई करना चाहते हो तो मॉइस्चर बढ़ाते हैं ना आप. सूरज के नीचे रखते हैं तो मॉइस्चर का टेम्परेचर बढ़ता है तो होता है, कैबिनेट में रखेंगे तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, वैक्यूम में रखेंगे. लेकिन फ्रीज ड्राइंग की सच अ प्रोसेस जहां पर तुम्हारा मॉइस्चर रिमूवल होता है -80°C. यू गॉट, बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें एक फेज स्किप हो जाता है, उसको सब्लिमेशन प्रोसेस होती है. सो जो -80 पे यूजुअली हुई से क्वालिटी तुम्हारी किसी भी चीज की खराब होती है, वन इज टू सब्जेक्ट दैट टू हायर टेम्परेचर. समझो आपने ड्राइंग किया 40, 50, 60, तो उस वजह से बहुत से हीट सेंसिटिव जो कंपोनेंट्स होते हैं दे गेट डिग्रेडेड. ठीक है, लेकिन जब आप फ्रीज ड्राइंग करेंगे, जब उसको ड्राई अप करेंगे किस फॉर्म में, एट -80, तो इसका मतलब है जो न्यूट्रिशनल है प्रोफाइल दैट इज कंप्लीटली रिटेन, उसमें कोई. लेकिन अब सवाल यह है कि फ्रीज ड्राइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द मतलब वो पॉसिबल नहीं है. फ्रीज ड्राइंग इज रिकमेंडेड ओनली फॉर द हाई वैल्यू क्रॉप्स बिकॉज ये प्रोसेस थोड़ी एक्सपेंसिव है. इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है दैट शुड बी हायर, सो दैट वे इट आल्सो सूट्स परफेक्ट द गुच्छी मशरूम. लाइकवाइज जैसे सैफरान के लिए आप यूज करके वी हैव ट्राइड फॉर सैफरान आल्सो, उस पर हमने काम किया है. तो जैसे कि हाई वैल्यू क्रॉप है वहां पर हम फ्रीज ड्राइंग एक्सप्लोर करते हैं. सो वी जस्ट ट्राइड दैट आल्सो. फाइन. सो ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला है पहले, दिस इज कलेक्शन हाउ वी कलेक्टेड इट, and then this is vinegar treated, this is curd treated, this is lemon juice treated, and this is just blanched. Fine. So ये हमने मतलब evaluation जो खैर इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, I won't take. These are the some of the quality parameters जो हमने इसमें evaluation की. Fine. So if you see here, यहाँ पर हमारा control plus freeze drying, मतलब outrightly we got, यहाँ पर इनके हर एक रिजल्ट आपको नहीं दिखाएंगे because you are not, आप उसमें बोर हो जाएंगे. लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा कि वी ट्राइड 4 ड्राइंग मेथड्स एंड आउट ऑफ 4 ड्राइंग मेथड्स आवर बेस्ट रिजल्ट्स वर शोन बाय द फ्रीज ड्राइंग. ठीक है, सो इसका मतलब है कि व्हाट वी डिड फर्स्ट वी सिलेक्टेड द ड्राइंग मेथड. तो इसका मतलब है जब हमने कंट्रोल, फॉर एग्जांपल जब हमने ब्लांचिंग लिया, ब्लांचिंग में भी फ्रीज ड्राइंग के साथ अच्छा रिजल्ट आया, विनेगर के साथ भी आया, कर्ड के साथ भी आया, लेमन जूस के साथ भी आया. ठीक है, और कंट्रोल में भी फ्रीज ड्राइंग ने अच्छा रिजल्ट दिखाया. फाइन. So then which one got the best result? हाँ, वो कौन सा है? लेमन का. ओके, तो दैट विल बी जस्ट शोइंग अहेड. तो हाँ, अगर आप यहां पर भी ऑब्जर्व करेंगे ना, विच वन इज लेमन. हाँ, अगर आप यहां पर देखेंगे ना एक चीज, अगर आप कलर देखेंगे यू कैन सी कलर वाइज भी इसका इट्स रिटेन बेटर. इसमें कलर डिटोरिएशन थोड़ी कम हुई है लेमन वाले में कंपेयर टू अदर्स. ठीक है, इवन देखिए कलर थोड़ा, ये तो कंट्रोल है, कंट्रोल की तो बिल्कुल हालत खराब है जिसको हमने कुछ नहीं, ऑल्दो इट इज फ्रीज ड्राइड, बाकी की तो ज्यादा ही हालत खराब थी, वो हमने नहीं किया. देन ब्लांचेड, देन विनेगर, देन दिस इज कर्ड, ये सफेद है इसका कर्ड, एंड देन देयर इज द लेमन. बट इट इज नॉट ओनली कलर, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स मैं आपको बोलूंगा. नॉट ओनली कलर, इसमें हमारा वी सी द रिहाइड्रेशन रेशियो, यानी कि अगर कोई बंदा कुक करेगा ये कितना फूल जाएगा, वो सब पैरामीटर. दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स कलर आई एम शोइंग यू. सो देन साइड बाय साइड व्हाट वी डिड, वन मोर थिंग जो मैं बोल रहा था, मॉइस्चर लेवल हमें स्टैंडर्डाइज करना है कि वी हैव टू कम अप विद विच सेफ मॉइस्चर कंटेंट इज देयर. मैं चाहता था कि 4 से 5 ना हो, इट शुड बी अपर साइड. दैट वाज माय ड्रीम. जब रिसर्चर एक रिसर्च कंसेप्ट कंसीव करता है ना, उसका कुछ दिल चाहता है, मतलब दिल बोलता है ऐसा होना चाहिए. तो मैं दिल्ली ख्वाहिश ये थी कि इसमें 4 से 5 डिजायरेबल ना आ जाए, हमारा 8% मॉइस्चर आ जाए, बिकॉज उससे उनका टोटल यील्ड बहुत बढ़ जाएगा. एंड लकीली वी गॉट इट, बिकॉज जब आपका इंटेंशन
साफ हो ना, तो फिर हेल्प मिल जाती है. तो लकीली वी गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर दैट मॉइस्चर लेवल, दैट आई विल बी शोइंग यू. एंड प्लस वी टेस्टेड द पैकेजिंग मटेरियल्स. पैकेजिंग मटेरियल पे भी हम अल्यूमिनियम लैमिनेट्स कर रहे हैं एंड वैक्यूम पैकेज. बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, जो वैक्यूम पैकेज होता है उसमें क्या यूजुअली रहता है कि उसमें तुम्हारा ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा, एंड स्पेशली उसमें हम नाइट्रोजन फ्लशिंग भी करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन ऑल ऑफ यू नो दैट इज इनर्ट गैस. ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी गो फॉर द नाइट्रोजन फ्लशिंग और उसके बाद उसको वैक्यूम पैक करते हैं. बिकॉज जो भी इसमें ये रहता है, व्हाट वी कॉल दिस स्पेशली मशरूम जैसे क्रॉप हो, तो दे आर नॉट ओनली सेंसिटिव टू द हीट, इनका हीट से डिग्रेडेशन भी होता है, प्लस दे आर सेंसिटिव टू द एयर ऑल्सो. ठीक है, तो इसलिए उसमें एयर भी ज्यादा नहीं आना चाहिए. सो देन वी ट्राइड इट स्टोरेज, वी केप्ट इट एट एम्बिएंट. एम्बिएंट वी से समझो उठाया मशरूम इधर रखा. ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज एम्बिएंट, मीन्स हमारे कंडीशन में. बट देन ऑल्सो वी थॉट, हम ये बात की इसमें डिस्कस करते रहते हैं, देन वी थॉट अब चलो मशरूम तो हमारा एम्बिएंट कंडीशन कश्मीर में तो ये है, लेकिन गुच्छी मशरूम को जाना है समझो मुंबई, या इसको जाना है दिल्ली, वहां तो यहाँ का टेम्परेचर नहीं होगा, वहां तो टेम्परेचर हाई होगा. हम यहाँ क्लेम करेंगे जी इसकी लाइफ शेल्फ लाइफ 3 मंथ है, लेकिन जब हम देखेंगे दिल्ली में वहां इसका 1 मंथ थी, तो हम कैसे रिकमेंड करेंगे. सो वी थॉट ऑफ टेकिंग द एक्सेलरेटेड स्टोरेज. हमने इसको किया एक तो अपनी कंडीशन में प्लस 40 डिग्री, यस 40 डिग्री हायर स्टोरेज पे भी किया. देखिए अंडर दीज कंडीशंस क्या स्टोरेज लाइफ है, अंडर हार्श कंडीशंस क्या स्टोरेज लाइफ है. ठीक है, सो एनीवे दीज आर डिफरेंट प्री ट्रीटमेंट जो हम अभी दिखा रहे थे आपको. सो दीज आर डिफरेंट पैक. जो पहले ये आप दिख रहे हैं 6, दे आर एक्चुअली वैक्यूम पैक्ड, एंड वो तो हमारा लेमिनेट दूसरा है. सो यहां पर भी आप देखते हैं कि जो अभी तक हमारा बेस्ट थिंग आया दैट इज लेमन जूस ट्रीटमेंट प्लस वैक्यूम पैकेजिंग नाइट्रोजन फ्लश एचडीपी. मींस जो हमने एचडीपी में पैक किया विद नाइट्रोजन फ्लशिंग, दैट गेव अस द बेस्ट रिजल्ट्स प्लस द लेमन जूस दैट टू फ्रीज ड्राइड. नाउ गोइंग टू आवर, मतलब अभी तक समझो जो हमारा काम चल रहा है, बिकॉज रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन. पीएचडी स्टूडेंट मेरे सामने बैठी है, देख रही है सर मत कुछ राज बाहर निकालेगा. तो until and unless it is published, it comes in the form of document, we cannot give everything. ठीक है, तो मैं आपको हल्का फुल्का बोल रहा हूँ, मोटा मोटा बोल रहा हूँ, आपको बारी किसी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज पीएचडी इसकी हो रही है. वंस इट इज कंप्लीटली डन, इसका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल कम अप विद द डिटेल्ड जो हमें इसमें अच्छाई मिली है. तो बट अभी मैं आपको बड़ी बड़ी बात बोलता हूँ, वो ये है कि अगर आप देखेंगे फाइनल मॉइस्चर कंटेंट, तो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट आप देखिए 5 to 6, जो हर ड्राइंग थी वहां पर 5% वो लोग ग्रो कर लाते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को ड्रॉप डाउन करते हैं. सन ड्राइंग में भी 6 करते हैं. इसका मतलब है ट्रेडिशनली लोग गुच्छी मशरूम को ड्राई करते हैं 5 to 6, बट आवर बेस्ट मॉइस्चर कंटेंट वाज 9%. हमने 6 पे किया, 9 पे किया, 12 पे किया. मीन्स जब आप फ्रीज ड्राइंग की बात कर रहे थे, इट वॉज अ वेरी ट्रबलसम. ये पीएचडी का काम लंबा, आपको पता है लंबा चौड़ा बहुत होता है. तो हमने इसमें क्या किया, हर एक ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को 6% पे भी लाया, 9% पे भी लाया, 12% पे भी लाया, फिर उनको अलग अलग पैकेज में डाला, अलग अलग स्टोरेज में डाला. देन वी थॉट कि कौन सी मॉइस्चर लेवल इसकी बेटर है. ठीक है, एंड वी केम अप विद दिस कंक्लूजन दैट 9% मॉइस्चर कंटेंट इज बेटर. अगर आप 9 मॉइस्चर कंटेंट पे सेव करेंगे तो आपकी शेल्फ लाइफ मशरूम की अच्छी रहेगी. देन ड्राइंग टाइम, अगर आप ड्राइंग टाइम की बात करें तो यू कैन सी ऑल्सो ड्राइंग टाइम इज रिड्यूस्ड अलॉट. मतलब अगर आप ऐसे ट्रेडिशनली लोग करते 3 से 4 दिन लग जाते हैं, 4 से 5, हमारा जस्ट 15 घंटे लग जाते हैं. ठीक है, देन इसमें दूसरी बात है दैट इज, ये क्या आपने ये गलत तो नहीं लिखा है, फ्रेश टू ड्राइड रेशो. अच्छा 300 ग्राम में बचेगा. ओके, बेसिकली आपको ये छोटा लगता है शायद, लेकिन ये छोटा नहीं है. अगर हम 1 kg के हिसाब बोलेंगे ये छोटा है, लेकिन जब आप देखेंगे आप हमारे टोटल प्रोडक्शन में उसको मल्टीप्लाई करेंगे बल्क में, तो इट बिकम्स अ ह्यूज क्वांटिटी. ठीक है, तो दीज आर द, ये तो खैर प्योर साइंटिफिक है, मैं ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूंगा, ये थोड़ा वाटर एक्टिविटी पीपीओ अलग है. लेकिन हाँ, लास्ट के 2 फ्रॉम कमर्शियल एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू, 2 मैं वही बोलता हूं जो एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. वो ये है रिहाइड्रेशन रेशियो. रिहाइड्रेशन रेशियो समझो उसका 2.3 है जो ट्रेडिशनल. उसका मतलब होता है कि जब इसको रिहाइड्रेट कर, बिकॉज अल्टीमेटली आपने ड्राई किया, कुक करने के लिए रिहाइड्रेट करना है ना. रिहाइड्रेट करना है मींस ये पानी एब्जॉर्ब करेगा तो ये पूरा एडिबल फॉर्म में दोबारा आ जाएगा. बिकॉज जब आप ट्रेडिशनल सन ड्राइंग करते हैं तो रेप्चर ऑफ सेल ज्यादा होता है, लेकिन जब आप फ्रीज ड्राइंग करते हैं तो सेल रेप्चर नहीं होता है. तो इसका मतलब है इसका रिहाइड्रेशन रेशियो 5.60 है.
दैट मीन्स इसकी सेंसरी जो एक्सेप्टेबिलिटी है दैट विल बी वेरी गुड, पीपल विल एक्सेप्ट इट मोर, बिकॉज इसका जो समझो अगर आप पहले गुच्छी मशरूम ऐसा है जब वो ड्राई करते हो सुकड़ जाता है, सुकड़ने के बाद दोबारा ये फूलता है, जब आप ट्रेडिशनली करेंगे वो खाली 2.3 टाइम्स बढ़ेगा, लेकिन जब आप हमारे प्रोटोकॉल से करेंगे तो ये 5.6 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह श्रिंकेज रेशो है, श्रिंकेज रेशो मतलब जितना कम हो उतना ज्यादा है, रेहाइड्रेशन रेशो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशो ट्रेडिशनली में 60 होता है, लेकिन हमारे वाले साइंटिफिक जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें 30 है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द कंक्लूजन दैट वी, जो मैं अभी तक आपको पहले बोल रहा था। सो वी होप कि दैट स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन, एंड हम अभी इसको बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द हेल्थ बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू। सो होपफुली कि वी एक्सपेक्ट दैट अगर हमारा ये एक सक्सेस रहा, इफ वी गेट सम वेरी गुड प्रॉमिसिंग रिजल्ट इज हेल्थ मोर ओवर, हमारा एक चीज़ एक क्लेम है दैट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि जो ट्रेडिशनली लोग करते जो उसमें वो न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, एंटी कैंसरियस, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी है, एंड वी बिलीव दैट कि हमारा मिरेकल वहां पर आना चाहिए, बिकॉज वी बिलीव कि वो एक्टिविटी दैट्स आवर प्रिजर्वेशन, वी बिलीव दैट वो एक्टिविटी मैक्सिमम रिटेन होगी अंडर आवर कंडीशन, फ्रीज ड्राइंग कंडीशन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल, बिकॉज जो आप ट्रेडिशनली ट्राई करेंगे तो वो सब एक्टिविटी जो उसकी हेल्थ बेस्ड एक्टिविटीज है वो उसमें खराब होती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिटिल पीस ऑफ वर्क वी हैव कंडक्टेड सो फार इन द गुच्छी मशरूम। सो अभी तक किसी ने लेक्चर दिया गुच्छी मशरूम पे कि नहीं? गुच्छी पे किसी ने नहीं दिया। Okay, that's all from my side, and let us keep it open for some discussion also. You can, if you want any discussion not only related to mushroom, अगर आपको पोस्ट हार्वेस्ट के रिलेटेड किसी भी क्रॉप के रिलेटेड कुछ है, यू कैन कीप ऑन डिस्कस। आपने जो पहले बताया कि जो फार्मर है या कोई भी है इसको जो कलेक्ट करते हैं जो फार्मिंग एरियाज में उसको फॉरेस्ट में करते हैं, तो क्या मैंने देखा है थोड़ा बहुत इंटरनेट पर मैं कि डिफरेंट कंट्रीज के फार्म बनाते हैं, तो वहाँ कल्टीवेशन होती है इसकी बाज़ाब्ता, तो क्या कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है भी इसको? बेसिकली इसका कमर्शियल जो है ना, देखो मैं आपको बोलूंगा एक चीज है इसमें, ऑल दो हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं इस पे, मशरूम वाले भी काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इसका कोई कमर्शियल प्रोडक्शन अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस या इंडोर कंडीशंस या अंडर डोमेस्टिक कंडीशंस नहीं हो पा रही, ठीक है। तो दैट इज वाई दैट यही एक रीजन होता है कि इसकी डिमांड भी ज्यादा है, एक इकोनॉमिक्स का पैटर्न है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई दे आर इंटररिलेटेड, ठीक है। बिकॉज अभी तक अगर इसकी डिमांड बहुत हाई है, एक्सपेंसिव बहुत है, इट इज बिकॉज इट्स अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस। जिस दिन ये अबंडेंट कार्ड तो हो सकता है, दैट इज गुड फ्रॉम है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन माय पॉइंट इज दैट अभी तक इसकी डोमेस्टिक कल्टीवेशन कमर्शियल स्केल पे नहीं होगी। ऑल दो बहुत सारे जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में भी, नॉट सुकास जे, जम्मू यूनिवर्सिटी वाले दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट, लेकिन अभी तक इसका मतलब वो एक कमर्शियल इस टाइप का नहीं आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा सैफरान में भी हमारा ये एक इशू है। सैफरान में बहुत से लोग आप देखते हैं टीवी में, उसमें दिखाते हैं जी सैफरान ग्रो किया पुणे में, उसमें दिखाते हैं ना, पेपर पे भी पढ़ते हैं, लेकिन अब लेमैन को तो पता ही नहीं होता है। हाँ जी जी सैफरान जी उगाया जी हिमाचल में, उधर उधर उगाया पुणे में, मुंबई में, बट इट इज नॉट दैट। ये क्या होता है कि दे गेट द कॉर्म्स फ्रॉम द कश्मीर। अगर आप सैफरान कॉर्म को घर में भी रखेंगे ना तो घर में भी सैफरान चढ़ेगा, लेकिन जो ब्यूटी है वो ये है कॉरम मल्टीप्लिकेशन। लेकिन कॉरम मल्टीप्लिकेशन अभी तक ये अनरिजॉल्व्ड है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम उस पर काम कर रहे हैं इस वक्त इन वन ऑफ माई प्रोजेक्ट्स। वो ये है कि जो कॉरम की मल्टीप्लिकेशन है वो कश्मीर में ही होती है, बिकॉज अगर एक बार कॉरम किया वो मदर कॉरम बन जाते, फिर कॉरम से 1 से 5 10 निकलते जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बार उनको हर साल कॉरम यहां से लेना पड़ता है, तो उसकी इकोनॉमिक्स नहीं बैठती उसकी, और कॉरम भी उतना सस्ता नहीं है, तो उसकी इसलिए वो लोग इकोनॉमिक्स उसकी बैठ नहीं जाती है, बिकॉज कॉरम भी बहुत एक्सपेंसिव है। अब आपको एक कॉरम से एक सैफरान निकला तो उसकी इकोनॉमिक्स कहाँ बैठेगी। यहाँ हमने एक बार कॉरम लगाया तो 5 साल तक उसी कॉरम से हमारा सैफरान निकलता है, और एक पहले साल जितना निकला सेकंड ईयर उसका और ज्यादा निकलेगा, थर्ड ईयर उसका और ज्यादा निकलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए इसमें अभी वो इशू है। तो लेट अस गिव बेस्ट ऑफ लक टू अवर प्री हार्वेस्ट पीपल, मे बी दे मे बी एबल टू डोमेस्टिकेट। You might have some expectations or obviously like term date term sessions to types. Huh? Traditionally, Wait. this is 7:1. Hmm. What have you hypotheticated in this?
but you are expecting to bring it down. देखिए ये तो सीधी सी बात है अभी, बिकॉज ये अभी काम चल रहा है, अल्टीमेटली आई कैनॉट क्लेम, लेकिन एक चीज है, समझो हमारा 6% मॉइस्चर कंटेंट है, वी ब्रॉट इट डाउन टू, मतलब अप वी रेज्ड अप टू 9%, हमारा 9% मॉइस्चर कंटेंट है अभी तक एज ऑफ नाउ। ये क्लेम कर रही है, समझो 7.3:1, हमारा 7:1 आया। इसका मतलब है जो अभी तक है स्टडी हमने, इसका मतलब है 300 ग्राम, ठीक है, मतलब वी कैन मे बी, अभी ये चल रहा है बट वी आर थिंकिंग कि इसका हमें और ज्यादा इसमें कुछ हमारा आ जाए। बट दिस आर 2-3 थिंग्स। एक तो हमारा ये है कि एक मॉइस्चर लेवल थोड़ी बहुत बढ़ जाए, अगर थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो उससे हमारा बहुत सारा यील्ड बढ़ेगा। बट सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्वली द क्वालिटी, बिकॉज अगर गुच्छी मशरूम है, सी ये रिसर्चर का काम क्या होता है, यही तो काम होता है। मिसाल के तौर पर गुच्छी मशरूम के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है, इट इज बीइंग क्लेम्ड दैट इट हैज एंटी कैंसर वगैरह, इसी वजह से जिसमें भी दिखा रहा था आपको, इट हैज हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ दोज हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन वन इज टू ट्राई इट इन द ट्रेडिशनल वे, तो वो हेल्थ बेनिफिट वो नहीं रहते, ठीक है, जैसे कि अभी तक जैसे लोग कर रहे हैं, ट्राइबल लोग बेचारे वो ऐसे ही उनमें चोलू में तो उसमें हेल्थ बेनिफिट्स रिटेंशन रहना बहुत, स्पेशली वी टॉक ऑफ विटामिन्स, ठीक है। तो इसीलिए वो भी हमारा एक इसमें एस्पेक्ट ये है कि वी वांट टू कम अप विद द कंप्लीट, समझो एक प्रोसेस प्रोटोकॉल एंड डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, जहां पर हम ये क्लेम करें जो ट्रेडिशनली गुच्छी मशरूम होते हैं उसका न्यूट्रिशनल कंपोजिशन क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स कितना रिटेन रहते हैं, जो हमारा प्रोसेस प्रोटोकॉल है उस प्रोसेस प्रोटोकॉल से हमारा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स कितने रहे, प्लस यील्ड कितना बढ़ेगा। मतलब वी एक्सपेक्ट कि यील्ड भी जो वो लोग यील्ड लेकर उससे हमारा यील्ड उनको इट शुड बी बेटर। सो स्टिल इट इज द पाइपलाइन। सो प्रोडक्शन तो मैं वही बोलता, ये तो हमारे ये साहब है, प्रोडक्शन तो मैं यही बोलता, देखे बेटा इसमें ये है कि एज ऑफ अभी तक तो वही बात सुबह से घूम रही है कि इसकी डोमेस्टिक, इसका जो डोमेस्टिक है ना अभी, ये इसको हम ऐसे अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन उस स्केल पे नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी ट्राइबल एरिया में ही उगता है एंड इसमें वो पता नहीं चलता है एग्जैक्ट मैकेनिज्म, इट्स डिफिकल्ट टू। इसमें आपके साथ एक लड़का ट्रेनिंग में है, कामरान, जो ये लैपटॉप सारा लगाता है, वो बेचारा अभी यहाँ से निकला, वही ट्रायल लेके उसी को देखने गया, उसमें कुछ बट अवर पीपल आर वर्किंग इट, वी होप कि अभी तक हम नहीं कर पाए। 2 बार लास्ट ईयर हम बारामूला और अनंतनाग में ट्रायल लगाई थी, हालांकि पॉली हाउसेस में, लेकिन अगर आपको लास्ट ईयर का याद होगा अप्रैल में, मार्च अप्रैल में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो एट दैट टाइम वी कुडंट कंटेन इट और अबॉर्ट हो गया लास्ट ईयर। इस बार हमने प्रोटेक्टेड पे एक बार किया और प्रोटेक्टेड भी हम इस फाइनल स्टेज पे हम जो ही पहुंचे वो चेंबर खराब हो गया एट अ टाइम। उसमें हम गए, हमने टेम्परेचर 18 का रखा था और ह्यूमिडिटी उसमें 2-3 चीजें थी, लाइट वगैरह का। अब सुबह गए वहाँ 32 टेम्परेचर देख रहे हैं, फिनिश सारा 2-3 महीने से काम चल रहा था। और वैसे भी वी आर फॉर्चुनेट, अलो देखिए बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द बिगेस्ट एडवांटेज विद द एग्रीकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यू नो व्हाट इट इज दैट वी आर एबल टू ग्रो द क्रॉप्स which are not grown in the rest of the country. Saffron, it's with us only. Walnut, we can produce around 95% of the walnut production of the country. ठीक है, एप्पल वी प्रोड्यूस अबाउट 75%, चेरी वी हैव अ कंप्लीट मोनोपोली, ठीक है, पेयर वी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। देखिए बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, इसी तरह गुच्छी मशरूम की बात करें, गुच्छी मशरूम इंडिया में अगर प्रोड्यूस हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है और उत्तराखंड में हो रहा है, और कहीं भी नहीं हो रहा है। सो दैट वे वी आर ब्लेस्ड विद, हमारा इसमें ये एडवांटेज, हालांकि इसमें डिफिकल्टी भी बहुत है, मैं फ्रैंकली बोलूं, जैसे रिसर्चर के लिए चैलेंज है, इकोनॉमी के लिए फायदा है। रिसर्चर के लिए क्यों चैलेंज है, बिकॉज जैसे कि फॉर मैं वॉलनट में काम करना चाहूंगा या मैं किसी चीज में, मुझे जो करना है या तो मुझे मैं खुद करना है या मुझे आउटसाइड इंपोर्टेड चीजें लानी है, टेक्नोलॉजी, और वो इतनी महंगी होती है वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज पूरा इंडिया तो इस पे काम कर, राइस की बात है, राइस में समझो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक तो हर एक इंस्टीट्यूट इस पे काम करता है, एवरी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड समथिंग, लेकिन जो हमारा वाला क्रॉप है ये हमारा डोमेन है, ठीक है। तो इस पे सिर्फ या तो हम काम करेंगे या तो फॉरेन से चीज देंगे, या फॉरेन से तो मतलब जैसे कि इस पे मैं आपको जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक आई विल टेल यू, आई हैव डेवलप्ड वन दिस वॉलनट प्रोसेसिंग लाइन, वो मैंने यहाँ पर बनाई है लोकली,
कंप्लीट डैलिंग, वॉशिंग, ग्रेडिंग, पैक, सब कुछ, ड्राइंग, उसमें समझो मेरा कॉस्ट है 15 लाख। जब मैं वही लाइन देख रहा हूं फॉरेन में तो आई एम गेटिंग 1.2 करोड़। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो ये हमारे क्रॉप है, ऑल दो एडवांटेज है हमारे लिए फ्रॉम इकोनॉमी, बिकॉज हमारे क्रॉप का और कोई कंपटीशन है नहीं, लेकिन रिसर्चर्स के पास भी बहुत चैलेंज होता है। जैसे ये बोलते हैं जो भी है करना है वो हमें खुद ही करना है, मतलब मे बी वी मे गेट सम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, किसी के साथ हम कोलैबोरेशन कर सके, लेकिन अल्टीमेटली डेवलप टेक्नोलॉजी हमें खुद करनी है। सो इन दैट कंटेक्स्ट वी हैव टेकन वन दिस मेगा प्रोजेक्ट हमने एक लिया है, जो अभी आपको तारिक साहब भी बोल रहे थे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी इन हिमालयन रीजन क्रॉप मैनेजमेंट। I have got that project recently, that is 42 crore project from Ministry of Electronics Information Technology. तो उसमें हम we are working on our 3 specific crops, that is saffron, एप्पल एंड वॉलनट। उसमें मोस्टली हम रोबोटिक्स ए वे ज़्यादा काम हो रहा है, बट आई मीन टू से जो भी हाई एंड टेक्नोलॉजियाँ बनानी है वो हमें खुद बनानी है। तो एनीथिंग मोर? So are these Gushi mushrooms found in Europe and American countries? फॉरेन में होगा आई थिंक, वहां पर भी जो यस वहां पर, लेकिन इंडिया में तो, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्शन हम देख रहे थे, नहीं चाइना में है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का तो ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है ना, चाइना में इसका है। चाइना इज डॉक्टर साहब, चाइना इसमें से डोमेस्टिक गोमुख की चाइना में इंडोर कल्टीवेशन, मतलब वहाँ डोमेस्टिकेशन हुई है। रेस्ट चाइना, हमारे इंडिया में आपको वाइड जो कलेक्शन हुई, प्रोडक्शन इज दैट। चाइना में, यूरोप में, लेकिन चाइना, यूएसए में बहुत सारी जगह हुई, और बहुत सारी जगह वो जो भी वो सेटअप था, मैं खुद देखा भी है, सेटअप भी बंद हुआ है, क्योंकि उनके लिए वो टेक्नोलॉजिकल कोई कप्स आए तो फेल हो गए। लेकिन कुछ जगह है, अभी हमारा असल में कॉर्नेल वालों के साथ एक कोलैबोरेशन चल रहा है यूएसए से, तो लेकिन वो भी इतना जिस तरह चाइना में जिस तरह आप कोई भी चीज तैयार करते हो ना, एनी वेजिटेबल, इट इज लाइक दैट फॉर, लेकिन आपको पता है दे आर वेरी स्प्रिड, वो अपना राज सिलिक का आपने सुना होगा, कितने 300 साल लोग सिलिक पहनते रहे और पता नहीं कहाँ ना। तो सेम इज द केस, वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। आई अप्रोच्ड विद मैनी दो साइंटिस्ट्स या बहुत सारे चाइनीज सोशल इन्फ्लुएंसर जो इन मशरूम्स के साथ वगैरह उनको फॉलो करते रहे, वॉच करते रहे, वो रिवील नहीं करते। अभी एक स्ट्राइक हुआ है यहाँ उत्तराखंड में, एक का प्राइवेट लेवल पे, तो वो आपने देखा होगा उनका, अभी हमने बात की डीएमआर वालों के साथ, उनका कोई एमओयू है, मैंने भी उनको अप्रोच किया, उन्होंने उस बारे में कहा कि हम अप्रैल में आपके साथ कोई एमओयू करेंगे, उस बेस पे हम आगे आपको टेक्नोलॉजी देंगे। लेकिन मैंने थोड़ा उनके पीछे इसलिए नहीं पड़ा कि आई बिलीव, आप पता नहीं हमारा क्या होगा, वी आर वेरी क्लोज, हमें खुद अपना स्ट्राइक होगा। सो लेट अस सी। One more thing, what are the causes? Where from they are coming out of nowhere? नहीं, हाँ, वो तो उसका There are रीजन stereotypes basically because of lightning and thunder. लाइटनिंग थंडर, यस, ऐसा कुछ प्रोडिक्शन है, इट इज कोरिलेटेड विद दैट, बिकॉज जो ट्राइबल लोग हैं दे यूजुअली गो टू कलेक्शन आफ्टर दैट थंडरिंग। बेसिकली इसको जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इसको खुद का मॉइस्चर और लाइट पीरियड जो चाहिए ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड बेसिस कुछ इस पे एक्सपेरिमेंटेशन भी हुई है, बट दैट हैज नॉट गिवन एनी मतलब कंक्लूसिव रिजल्ट कि हाँ इसका कोई इम्पैक्ट है। बट व्हाट डज रिसर्च एक्चुअली से रिगार्डिंग दैट, दैट पीरियड इज एक्चुअली, इसको उस टाइम पे जो टेम्परेचर, लाइट सनलाइट जो हमारी है, ये जो वो उस टाइम के इर्द गिर्द, उससे पहले जब आप लाइटनिंग की बात करते हो उस टाइम उसका एब्रप्टली बहुत अच्छा मॉइस्चर भी बन जाता है, तब तक वो थोड़े उस टाइम वो बनने और एब्रप्टली उनका ग्रोथ जो है ना वो स्पीड अप हो जाता है। अदरवाइज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट टाइम इज एक्चुअली इसका हाँ, जस्ट थंडरिंग इट मा कहीं पद, बट दैट मस्ट बी एग्रीवेटिंग इट इज ग्रोथ एंड उस टाइम में तैयार हुआ। उस टाइम आपको बारिश भी हल्की सी होती है, उसको वो मॉइस्चर चाहिए, और टेम्परेचर जो उस टाइम बनता है ना, दैट इज वेरी मच फिजिबल, उस वजह से आपको वो क्रॉप दिखता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आज रात को ठंड या शाम को होगी तो कल सुबह हमें एब्रप्टली मिलेगा। असल में इट हैज गॉट सम रिलेशन, जो पिछले कई दिनों से जब तक ये ठंड के टाइम तक आ जाता है, जो टेम्परेचर और मॉइस्चर का जो सिस्टम बनता है उसको फेवरेबल हो जाता है। अब लोगों ने मार्कर्स रखे,
फोकलोर एक हमारी एक मतलब इसमें मैंने एक पीपीटी भी बनाया है कि इसमें लोग क्या कहते हैं व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, साइंटिफिकली व्हाट हैज बीन प्रूव्ड व्हाट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कभी इन चीजों को ना नहीं कहता हूं, मैं सिंपली कहता हूं साइंस हैज नॉट प्रूव्ड इट, That's true. साइंस हैज नॉट प्रूव्ड इट, दैट डजंट मीन एग्जिस्ट नहीं कर एंड दूसरी चीज़ है डॉक्टर साहब, इसमें अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक ऑफ द जहाँ पर ये होता है, प्रोड्यूस होता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब अगर कोई एरिया है तटन जो पर्टिकुलर स्पॉट पे नेरा, इट्स नॉट कि ठंडरिंग से हर जगह फैलेगी, एंड दे नो वेयर ये उनको पता होता है किस जगह ये होता इसमें इनॉकुलम सो मैं इसलिए आपको वो उसके ये इसका इंस्टाग्राम पेज भी चलता है इस कामरान, उसमें इसने वो काफी सारी इसकी इंफॉर्मेशन देता है, वो आप उसको अगर फॉलो भी करोगे तो वो आपको पता चलेगा, उसने वो छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। वैसे बोलने से फिर ऑफ द रिकॉर्ड में शियाद में सुकास जे में था ना, मैं आई वाज इन अर्लियर सुकास जम्मू, तिमन दोनों उस तक डायरेक्टर ऐसे सोज ये गोड डीन सो डॉक्टर अब्दुल रशीद समाना वेरी ग्रेट मैन, ही वाज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट भद्रवा, तम हसा कर उस टाइम वहाँ पर की बात है मुझे याद है, ही वाज डायरेक्टर दे डायरेक्टर एजुकेशन, तम हसा कर तम न्यू पैथोलॉजी टीम सोरी नीन भद्रवा तमन पहाड़न पे, ठीक है, बिकॉज वो बहुत सिंसियर था बेचारा, ही ट्राइड अलॉट, खुद तो वेटनेरियन था, उसने पूरा पैथोलॉजी का टीम लिया, तत कर जंगलस में दिन टेंट रात, जो वो एक्सपेक्टेड था ना जिस टाइम होता है, वो टेंट दिए रात भर, सो देन दे ऑब्जर्व, वो फिर हार्वेस्ट किया, फिर वहां से वो सॉइल भी उठाने की कोशिश की, लेकिन तब भी वो इसमें चैलेंजेस बहुत है। असल में आप देखोगे ना, अगर जो लोग उसको काटते हैं और विदाउट, अक्सर इसने एक वीडियो भी वो बनाया है, अगर आप काटते हो जिस टाइम करते हो बट कट इट व्हेन इट इज मैच्योर, यस क्यों, इसको स्पॉर्लेशन भी होगी, और जब काटोगे मैच्योर फिर थोड़ा बहुत उसको उधर झाड़ो, ऐसे कर लो स्पोर्स अपने आप नीचे आ जाएंगे, तो बाद में इसको पता है अपनी प्रोसेस कैसे, बिकॉज़ इट इज एन हेटेरोथैलिक मंजे, इसको दो डिफरेंस ये चाहिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम ऐसे कहेंगे, तो ये हेटेरोथैलिक है, होमोथैलस नहीं है, यानी कि एक ही फंगस का गुच्छा उससे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी है होमो वाले भी, लेकिन जो हम प्रेफर करते हैं वो जो आप देखते हो वो मोस्टली हेटेरोथैलिक है उस पे, तो उसमें अक्सर उसी जगह जिस जगह आपने एक साल लिया वही दूसरे साल में उधर ही मिलेगा, अब ये कभी कभी कहीं और भी जाता है, अब डिपेंड करता है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ राइजोफिलिक ये राइजोस्फीयर इनका कॉम्बिनेशन होता है रूट के साथ प्लांट, कुछ का नहीं होता है, अब कुछ का किसी एक प्लांट के साथ होता है, किसी का किसी दूसरे के प्लांट के साथ, इसमें सो मच ऑफ वेरिएबिलिटी और वेरिएशन है, तभी जाके ये डिफरेंट कलर्स डिफरेंट टाइप्स, आपको हमने एक कलेक्शन समर की भी ले ली है, एंड वी आर गोइंग टू रिपोर्ट, हमें तकरीबन 4-5 नए स्पीशीज यहाँ मिल रहे हैं, जबकि ऑलरेडी यहाँ 15-20 रिपोर्ट है, मैंने उनको दिखाया वो, आई जस्ट शोन देम तो इसमें पिक्चर्स। बहुत सारे मसले हैं इसके, लेकिन कल्टीवेशन प्रोसेस वी आर नॉट एबल टू स्ट्राइक इट, चलो गिव बेस्ट ऑफ लक टू देम एंड let us hope that we may be able to domesticate it somehow. यस, So chalo, anything more? Thank you very और much. थैंक यू सर, चलिए, my pleasure. मुझे परसों जब सर ने कहा विश्व अपने जरा उर्दू में बोलो, तब से मुझे उर्दू में ज्यादा ही शौक हुआ, अच्छा, हमने आपको आपके शायर निशान इस्तेमाल नहीं किया, कोई बात उसके नहीं, लिए हम माजरत का है, कोई बात नहीं, आई आप अंडरस्टैंड। खुद हाँ, इस वक्त का माहौल, यस, और हमारा भी अभी इसने हारून साहब ने बुलाया आपके नहीं साथ मुझे पता है, ये इसको तो मेला है, everybody is on toes. वी साहब के साथ मिलाना, ये इधर उधर भागा आया, नहीं प्लीज प्लीज कैरी तो ऑन। मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, और मैं उम्मीद है आप माफ भी करेंगे, नहीं नथिंग, हमने एक छोटा सा तोहफा आपके लिए रखा है, ये एक आपके पास इससे अच्छे बहुत सारे होंगे, लेकिन ये हमारी तरफ से मोहब्बत का नजराना। थैंक यू सर सर्टिफिकेट मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन चलो फोटो में पता नहीं चलेगा, सब सुनिए कौन किसको दे रहा है। नहीं, सब समझेंगे, तारीख को जमीर सर ने सर्टिफिकेट आपको, थैंक यू।